So good morning, everyone. I hope I'm audible to you, all of you. Yes, good morning. Yes. So today's lecture is lecture number 4, and we have tried to build the base in the first 3 lectures, giving you the mathematical aspect of Coulomb's law, and also telling you something about the dielectric constant, electrostatic series, on how we can charge an uncharged body, how there is something called as the cling, electrostatic cling effect that you see. We have done a lot of concepts in the past 3 lectures. So today I thought we need to check how much of it we are able to apply to the various questions. So based on what you have learned in the previous 3 lectures, and I'm going to teach you something extra today, we will just check some of the evaluation or some of the problem solving skills. So let us come to the first question, which is part of the unsolved section of the textbook. It says there is a positively charged glass rod and it is brought close to a metallic rod. So you can think when I say positively charged, the glass rod is completely charged and it is brought next to a metallic rod, which is isolated from the ground. In the previous lecture, we saw that I had explained how conductors can be charged and how insulators are getting charged. So we had seen what is the difference or which are the different methods of charging of a conductor. So the charge on the side of the metallic rod away from the glass rod will be. So what are they typically asking you is that ये आपका जो है, अगर हम ग्लास रॉड बोलते हैं और ये मान लो कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसका ये कहना है कि अगर आपके पास एक दूसरा मेटालिक रॉड है जिसको आपने ग्राउंड नहीं किया है, तो ही इज आस्किंग यू यहां पर, ये साइड पर, दैट इज वो कौन सा साइड है? इट इज द साइड विच इज अवे फ्रॉम द ग्लास रॉड. क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ प्लस है तो ये जो माइनस है यहाँ जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है. तो उसको जानना है कि द साइड अवे फ्रॉम द ग्लास रॉड क्या रहेगा. सो व्हाट वुड बी योर आंसर? Okay. So first option says same as that of the glass rod and equal in quantity. सेम मतलब वो क्या बोल रहे हैं, वो चार्ज सेम है. मतलब एक तो पहले ये बताओ कि वहां प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो वहां कौन सा आने वाला है? अगर एक माइनस इस तरफ जमा हो गया है, आपको सिखाया गया था कि उल्टा चार्ज वहां आएगा. मतलब ये तो क्लियर होना चाहिए कि ये तो प्लस होने वाला है. ये सर, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. क्लियर है मैं क्या बता रही हूँ? यस. सो सो वो तो पक्का है कि वो पॉजिटिव है. मतलब अगर आप देखेंगे 2 ऑप्शन में, नहीं 3 ऑप्शन में दे से सेम एज दैट ऑफ द ग्लास रॉड. तो आइदर इट इज ए, आइदर इट इज सी और इट इज डी. सो इट इज सेम एज द ग्लास रॉड. अब आपको ये सोचना है कि क्या उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, क्या उसकी क्वांटिटी क्या बोलते हैं व्हाट यू से लेस रहेगी, या उसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी. तो आपका क्या मानना होगा उसमें? ओके. जो राइट साइड पे होता है ना, जो लेफ्ट साइड पे होता है वो सेम रहता है. कौन सा बोल रही हूँ? नेगेटिव वाले चार्जेस सेम रहते हैं. समझ रहे हैं? नेगेटिव वाले चार्जेस जो हैं वो सेम रहते हैं, बट ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है उसका हम गारंटी नहीं दे सकते.
Are you getting it what I'm saying? या सो इसलिए वहां पर ऑप्शन हो जाता है कि द सेम एज दैट ऑफ द ग्लास रॉड बट लेसर इन क्वांटिटी, क्योंकि जो अदर साइड होता है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका जहां डायरेक्ट हो रहा है वहीं पे आपका कंट्रोल है। प्लस जो है वो माइनस को इंड्यूस करता है, वो माइनस इक्वल हो सकता है, बट जो दूसरे साइड पे प्लस आ रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दैट मीन्स दैट कुड बी लेसर इन क्वांटिटी, so that means here the answer was option C. Okay, moving on to the next question. An electron is there which is placed between two parallel plates connected to a battery. Okay, this will take time. I'll have to teach you something. So let's go to this one. Two charges of 1 coulomb each are placed 1 meter apart in free space. तो दो charges हैं जिनको 1 coulomb are placed 1 meter apart. So there is one charge here, one charge here. दोनों 1 coulomb हैं and they are separated by a distance of 1 meter. तो क्या आप इनके बीच का फोर्स बता सकते हैं? Can you tell me the force? Okay, today seems to be some issue. I can't see the chat box today. Okay, so I hope you're applying the force formula. What is the force formula? F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. ये अपना फोर्स का फॉर्मूला है। तो अगर ऐसा है, then I hope you're applying the formula and then giving me the answer. F is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. ये हमको सिखाया गया है। तो ये क्या है? 9 into 10 to the power 9. 9 into 10 to the power 9. 9 into 10 to the power 9 आ गया इधर, into 1 into 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? व्हाट्स योर आंसर? इट्स नथिंग बट ऑप्शन बी. Yes, option B is your right answer. 9 into 10 to the power 9 Newton. So I hope you were able to solve it. Next, now there are 2-point charges. Let's check whether you are able to do this. There are 2-point charges, 5 coulomb, and so placed that they experience a force of this much. मतलब force दे दिया, charge दे दिया. Then they are then moved so that the force is somewhere like 2.0 into 10 to the power minus 3. ये जो है ना, ये 2.0 into 10 to the power minus 3 है. टेक्स्ट बुक में वो मिस्टेक है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपो एरर. सो दिस इज नथिंग बट 8 into 10 to the power minus 3. सो दो फोर्स दिए हैं. अब वो उनका पूछना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. कैन यू थिंक अबाउट इट? एफ का क्या फॉर्मूला है अपना? एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो मेरा आपसे पहले सवाल है, क्या उन्होंने चार्ज को चेंज किया? क्या उन्होंने चार्ज को चेंज किया? नहीं चेंज किया, तो चार्ज कांस्टेंट है.
और 1/4πε0 भी कांस्टेंट है। तो हम किसके बीच का रिलेशन देख रहे हैं? हम लोग ये डिस्टेंसेस के बीच का रिलेशन देख रहे हैं, राइट? यानी कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस. So if that is the case, that means we are basically looking at F is, यानी कि inverse square law, F is inversely proportional to R square. So F2 upon F1 is equal to R2 upon R1 the whole square. बराबर है? अब F2 हमें पता है कितना है सेकेंड केस में फोर्स, इट इज 2 into 10 to the power -3 अपॉन 8 into 10 to the power -3. तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये गया 2 फोर्स is equal to R1 upon R2, sorry, R2. Okay, I have written that order wrong, inverse है ना? So therefore this is R1 and this is R2 because inverse है. So this is R1 R2 the whole square. So what you are getting, R1 upon R2, R1 upon R2 is therefore square root of 1/4. इसका मतलब है R1 upon R2 हमें मिल रहा है हाफ. इसका मतलब है R2 is equal to 2 times of R1. So ये हमारे इसका वैल्यू है. R2 is equal to 2 times of R1. तो कौन सा आंसर आपको करेक्ट लग रहा है? Which answer is correct? Yes, R2 is double the previous distance. Please take it down. Please make the changes. Please tell me when it is done. Yes, Raj, I can show you the previous slide. I hope this is finished by everyone. So I'm going to the previous. Yeah, this one. Here B is the correct answer. Okay, done. Okay, moving on to the next. So read the question. It's not very difficult. It's just asking you how many charges are there. So it's a very, very simple question, which is saying that, you know, the charge on every, what you say, the charge. Yeah, what is it? Okay. Okay. Yeah. Yes. So let's see what it is asking. It's telling you the charge on an electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So we already know the charge of an electron, right? That is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. हमें बताया गया है कि charge है.
अगर चार्ज is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, then how many electrons are required to accumulate a charge? How many electrons are required to accumulate a charge of 1 coulomb? So how do we do the number of charges thing? It's very simple. It's not very difficult or something like that, because it is just asking us how many charges are there per coulomb. तो इसका मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, so एक इलेक्ट्रॉन जो है, if it has a charge of how much, 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, then 1 coulomb will have 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 electrons, right? So 1 upon 1.6, अगर आप reciprocal देखेंगे, anybody has a logbook? Can you see what is the reciprocal of 1.6? अगर आपके पास logbook है, तो क्या कोई मुझे देख के बताएगा कि 1.6 पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? आपके reciprocal section of the logbook में go to reciprocal and check for what is 1.6 का value. Okay, thank you Divya. It is 0.625. It is 0.625. तो यहाँ आएगा 0.625 और ये पावर ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? तो इसको हम एडजस्ट करके ऐसा भी लिख सकते हैं 6.25, मतलब राइट शिफ्ट किया तो पावर कम होता है एक से, राइट शिफ्ट किया तो पावर एक से कम होता है, तो इसका मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन्स है, काफी ज्यादा है, इजंट इट? 10 टू द पावर कितना लिखा है यहाँ पे, 18 प्लस 18, मतलब 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स है वहां. So this is the answer कि 6.25 into 10 to the power 18 electrons are required to accumulate a charge of 1 coulomb. हम कितने आसानी से बोलते हैं 1 coulomb, बट 1 coulomb में कितने चार्ज सरफेस पर एक्यूमुलेट होने पर उसको 1 coulomb बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट ये वैल्यू ही आपको पता रहना चाहिए कि एक कूलम चार्ज बनाने के लिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं. हम लोग कब से बात कर रहे थे ना कि ये चार्जिंग हो रहा है, ग्लास को हम चार्ज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत सारे नजदीक आ जाएंगे, दे फ्री चार्जेस, वो सरफेस की तरफ बाउंड्री पर आ जाएंगे. तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दैट, अभी दिमाग में ये भी बिठा दो ताकि जब भी मैं 2 कूलम बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में हो गया कि ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 की डबल इलेक्ट्रॉन्स, राइट? उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तब जाके 2 कूलम बनेगा, बिकॉज ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम है. इसका मतलब है 1 कूलम बनाने के लिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं एक कूलम बनाने के लिए. तो ये प्लीज नोट डाउन करके रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू कैन टेक इट डाउन, आई विल वेट.
I hope it's completed. All of you have completed. Can I move ahead? Okay. Now there is a question which says calculate and compare. Calculate भी करना है, फिर compare भी करना है. Calculate and compare the electrostatic and the gravitational force between two protons, which are kept at a distance of 10 to the power minus 15 meter. और value of G दिया है, you know G, and mass of the proton दिया. तो दो प्रोटॉन्स की बात हो रही है. तो यहां पहले क्या करना है कि पहले स्टेप में हमें दोनों फोर्सेस को याद करना है. ये जरूरत है क्योंकि अगर आपको याद है कि फर्स्ट लेक्चर में हमने दोनों फोर्सेस के बारे में डिफरेंशिएट भी की थी. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. राइट? करेक्ट है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होती है. अब यहां पर क्या है, Q1 और Q2 जो है कौन है? प्रोटॉन्स हैं. और प्रोटॉन की चार्ज कितनी होती है? यानी कि दोनों प्रोटॉन ही हैं. तो प्रोटॉन की चार्ज कितनी होती है? कौन बताएगा मुझे? प्रोटॉन की चार्ज क्या होती है? यू डन केमिस्ट्री, यू डन फिजिक्स. प्रोटॉन की चार्ज कितनी होती है? प्रोटॉन की चार्ज होती है सेम एज इलेक्ट्रॉन. यस. प्रोटॉन, सौरभ, तेजस, प्रोटॉन की चार्ज होती है सेम एज इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स इट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. राइट? डिस्टेंस कितनी होती है? दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है हमें 10 to the power minus 15 मीटर. ये अपने को दिया हुआ है. अब हम सब्स्टिट्यूट करके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स को निकालते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स कैसे आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10 to the power 9. राइट? ये वाला अपना कांस्टेंट आ गया. Q1 into Q2 that is 1.6 into 10 to the power minus 19. वापस 1.6 into 10 to the power minus 19 upon 10 to the power minus 15 the whole square. तो यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ होगा 9 into 1.6 into 1.6. और पावर देख लेते हैं सारे पावर को क्या हो रहा है. So 9 into 1.6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 और minus 19 minus 19 कितना हो जाएगा? -38 हो जाएगा. -38. और ये देखो ये जो स्क्वायर हो रहा है मतलब कितना हो गया? -30. ऊपर आएगा तो +30 हो जाएगा. सो कितना होगा? ऊपर ऑलरेडी -38 है, +9 है और नीचे का +30 आया. तो -38 और +30 हो जाता है -8. -8 और +9 हो जाता है 1. इसका मतलब है ये हो गया 9 into 1.6 into 1.6 into 10 to the power 1. बराबर है? मल्टीप्लाई करो 90 into 1.6 into 1.6. मुझे बताओ कितना आ रहा है? 90. 9 into 10 हो गया ना, 10 to the power. So 9 into that is 90 हो गया. So पावर को अगर आपको रखना है बाहर तो आप रख सकते हैं. यानी कि आप 16 into 16 कर सकते हैं. 256 होता है ना 16 into 16. So 256 into 9 करके देखें.
आई थिंक यू शुड गेट लाइक 2304 अगर आपको मिलेगा, फिर पावर को एडजस्ट कर देंगे. यू विल गेट 2304 इंटू 10 टू द पावर, ये -2 + 1 कितना होता है, -1, बराबर ना. आ रहा है या 230.4 ऐसा कुछ आ रहा है शायद. So this can be written as 230.4 Newton. 230.4 न्यूटन आना चाहिए. आ गया. तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया. ठीक है, तो आई होप एवरीवन इज राइटिंग. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. अब हमें देखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोटॉन्स के बीच क्या है. आप ट्राई भी कर सकते हैं. एफ जी जो है, मतलब ये एफ ई लिया मैंने क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है. एफ जी जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, G m1 m2/r². बिकॉज हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, हमें दोनों के बीच का एक रिलेशन ढूंढना है. मैंने शायद आपको बताया था कौन बड़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कि ग्रेविटेशन. मैंने बताया था आपको कि इसमें से कौन बड़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक. यस, तो ये इसकी प्रूफ है. ये जो है ना, ये इसकी प्रूफ है कि वो कितने गुना जो है वो बड़ा है. सो ये काइंड ऑफ इट्स अ प्रूफ, हम प्रूफ कर रहे हैं ताकि आप नहीं भूले कि कितने ऑर्डर में से वो बड़ा है. कितना ऑर्डर से बड़ा है मैंने वो बताया था आपको. हाउ मेनी टाइम्स. यस आदित्य, वेरी गुड. कितने टाइम्स बड़ा है. यस वर्षा, वेरी गुड. यश वर्मा, भव्या. 36 टाइम्स. 36 ऑर्डर्स बोलते हैं एक्चुअली, टाइम्स नहीं बोलते एक्चुअली. वो ऑर्डर, ऑर्डर मतलब 10 टू द पावर होता है. ओके, सो हैव यू फिनिश्ड दिस फॉर मी टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट. Okay, so I'm just clearing the screen. तो हम अभी ग्रेविटेशनल वाला, तो ये भूलना मत, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कितना मिला है, हमें 230.4 न्यूटन करके मिला है. करेक्ट. आप इसको तरीके से लिख सकते हैं. अगर आपको ऐसा लिखना है 2.3 अगर लिखना है तो आप वैसा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. तो 10 टू द पावर कितना डालना पड़ेगा, 2.3 अगर हमने पकड़ा तो 10 टू द पावर कितना डालना पड़ेगा, 2 न्यूटन डालना पड़ेगा. बराबर है. तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स ढूंढ रहे हैं तो इट इज द फॉर्मूला G m1 m2/r². तो G कितना है, 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इंटू 10 टू द पावर -27 मतलब हो गया -54. बराबर है. अपॉन आर का स्क्वायर, आर तो वही है 10 टू द पावर -15 मीटर का स्क्वायर. तो वापस हम वही कर रहे हैं. अगर आपके पास लॉग बुक है देन इट वुड बी बेटर. 6.674 इंटू 1.67 इंटू 1.67. अभी 10 का पावर देखो क्या आने वाला है.
-54 और -11 जो है -65 हो जाता है। -65 और +30 -35 हो जाता है। जब वो ऊपर जाएगा तो वो +35 हो जाएगा। ओके, तो लॉग बुक है आपके पास, तो आप मुझे लॉग बता सकते हैं इसका, सो आई कैन डू इट। कैन यू गिव मी द लॉग ऑफ 66 का 7 एंड 4? 66 का 7 एंड 4। Q1 M1 M2 है ना बेटा विजेंद्र? M1 M2 उसका मास है वो। उसका मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 विजेंद्र। तो ये क्या होता है कि ये यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा मास में, तो 2 बार सब्स्टिट्यूट होगा ना, क्योंकि दोनों प्रोटॉन ही है। मुझे लॉग बताओ 66 का 7 एंड 4। 824 है माना पक्का? ओके, 0.824 पक्का? Okay. So then this is 0.824 plus 0.16 का 7 बताओ। 16 का 7 log 0.222। ओके, तो 2 बार 0.222 आएगा ना, तो 0.222 फिर वापस एक और बार 0.222 ऐड कर देते, तो इसको आ जाएगा 8, ये कितना हो गया 6, ये क्या होगा 12, और ये। अब मुझे बताओ एंटी लॉग ऑफ 1.268, एंटी लॉग ऑफ 26 का 8, 26 का 8 का एंटी लॉग बताओ। वन एट फाइव फोर 1854 आ रहा है, तो इसका आ रहा है 18, तो 1.854 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू ऑलरेडी यहाँ 35 है, आपको दिख रहा है? इसका मतलब है ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये -35 होगा। मैंने यहाँ गड़बड़ किया, माइनस होगा, क्योंकि वो आई होप यू मेड द करेक्शन इन योर बुक ऑल्सो। यहाँ -11 है और यहाँ -54 है, तो -65 हो गया, -65 और ऊपर +30 गया, तो -35 होगा। तो ये -35 है, इसका मतलब इसका आंसर आप लिख के रखो, इसका आंसर आ रहा है 1.854 इंटू 10 टू द पावर -34। बराबर है? देखो आ रहा है कि नहीं। अब ये दोनों वैल्यूज सबके बुक में होना चाहिए, मतलब दो प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दो प्रोटॉन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज अभी हम लोग इसको कंक्लूड करने वाले हैं, दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। जब भी मैं फिजिक्स में कंपेयर का वर्ड यूज करूं, समझ जाने का, रेशियो निकालने वाले हैं, फ्रैक्शन देखने वाले हैं, तो दोनों को कंपैरिजन बोला ना कभी भी, सो देन यू नो इवन क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में कंपेयर वर्ड आया मतलब समझ जाने का यार रेशियो की बात हो रही है।
तो अब दोनों वैल्यूज को अभी हमें रेशियो के फॉर्म में चेक करना है. यस, हमें क्या करना है, Fe अपॉन Fg निकालना है ताकि दोनों के बीच का एक रिलेशन मिल जाएगा. Fe अपॉन Fg. So have you finished writing? नहीं, जरूरी नहीं है इसको राउंड ऑफ करके भी फायदा नहीं है, मैं बताऊंगी अभी क्या होगा. उसको ऐसे ही रहने दो. हो गया है सबका? ओके. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको इरेज करूँ. तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं Fe और Fg का. तो हम Fe अपॉन Fg देख रहे हैं. Fe अपॉन Fg इज नथिंग बट Fe कितना आया था अपने को, 2.3 इंटू 10⁻² आया था. और ये कितना आया था, 1.854 इंटू 10⁻−34 आया था. तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमें मिलने वाला है 10⁻36. अब इसका एक लॉग देख लेते हैं. मेरे को फटाक से बताओ 2.3 का कितना आ रहा है. 2.3 का लॉग बताओ. 23 का लॉग. 23 का लॉग कितना है बताओ. 3617. ओके. और 18 का 5 एंड 4 बताओ. 18 का 5 एंड 4. ओके, 3617 मिला. अभी 18 का 5 एंड 4 बताओ. 18 का 5 एंड 4, 2672. 18 का 5 and 4. Okay, Saloni says it is 2672. Can you check once again? Because Tejas says it is 2681. 2681. Okay. 2681 आ रहा है. तो मैं इसको ये हो जाएगा 3617 माइनस 0.2681. तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस बार. तो यहाँ 5 कटेगा. 3 2 ऐसा कुछ मिल रहा है. Can you check the anti-log of this value? Can you check the anti-log of this value? कितना आ रहा है anti-log? Anti-log of 0936. हाँ, तुम्हें कुछ ऐसे ही मिलेगा. 1.23 ऐसा कुछ आएगा. 1239 ऐसा कुछ आएगा. या 123. 1239 आ रहा है. 1241. 09 का 3 and 6. सबको अलग अलग क्या आ रहा है. लॉग बुक पिछले जमाने का है. 1239 बोल रहे, कुछ लोग 1230 बोल रहे, 1241 बोल रहे. 1239. 1239 होगा, राइट. सो यू कैन राइट दिस एज
1.239 into 10 to the power 36। अब तुम मेरे को बताओ इधर ऑर्डर कौन सा है, ये 36 है, बिकॉज 1.23 का क्या कंपैरिजन करेंगे, कुछ भी तो नहीं है ये नंबर, बट ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये Fe अपॉन Fg है। इससे हम क्या प्रूफ करते हैं, आज जो हमने स्टेटमेंट मारा था, हमने बड़ी डायलॉग मारी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शो फोर्स है, इट इज अबाउट 36 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एकदम परफेक्ट हो गया, आप समझ रहे, एकदम परफेक्ट हो गया कि Fe जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 1.239, तो जाने दो कितना है, 10 टू द पावर देखो 36 टाइम्स, मतलब 36 ऑर्डर्स ऑफ Fg। इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। तो ये तो कहीं लिख के ही रखो, ये सब चीजें ना याद करनी पड़ेगी आपको, मतलब यू नो फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि तभी तुम थोड़ा ना निकालते बैठोगे। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए, मतलब यू नो व्हाट एवर आई एम डूइंग फ्यू ऑफ द थिंग्स। तुमको एक कूलम में कितना चार्ज है, मैं भूल गई, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 टू द पावर कितना है, यू नो। अगर आपको पहले वाला वैल्यू भी याद नहीं आया, ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, पावर को मत भूलिए, 10 टू द पावर 18, सो 18 का डबल कितना होता है 36, मतलब ऐसे ही याद करने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ रिलेशन नहीं है, बट ऐसे ही बता रही हूँ कि यहाँ 18 याद करना है और यहाँ 36 याद करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो, वहां एक स्टेटमेंट भी आप लिखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अबाउट 36 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दोनों नहीं लगाता, वो सिर्फ अट्रैक्शन दिखाता है, बराबर है ना। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने देखा कि अट्रैक्शन भी होता है और हमने देखा कि रिपल्शन भी होता है। तो ये बात आपको बहुत बड़े ध्यान से याद करना है। यस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अबाउट, अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है इसके नीचे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is about 36 orders of magnitude. The electrostatic force is about 36 orders of magnitude of magnitude stronger than the gravitational force. मैंने ना चैट बॉक्स में डाल दिया, तो आप सब देख सकते हैं। So the electrostatic force is about 36 orders of magnitude stronger than the gravitational force. I hope you can see it on the chat box, so it'll be easier for you. Okay? तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मैत्री, सारे लेक्चर्स अपलोड होते हैं ना, ऐसा नहीं कि नहीं अपलोड होता है, वो मेरे लेक्चर के हिसाब से रहता है। इफ आई एम यू नो इफ आई हैव कंटिन्यूअस लेक्चर्स देन आई डोंट गेट टाइम टू अपलोड, सो देन आई अपलोड इट ऑल टुगेदर, बिकॉज आपका बैचेस भी है, M12 भी है, नीट और जेई बैचेस भी है ना, तो फिर मैं सबको साथ में ही कर लेती हूँ, ऐसा करते हैं। हमारे बारे में भी सोचो यार जरा। Anurag, everything will change accordingly. But this is standard because when we're talking in terms of particle, or when we're finding a relation, there's not much bigger mass and all, you know, if you're talking about elements and all you're talking about, right? We always take it at the static level because these become big, what do you say, later on big masses. Because this is hypothetical what you're saying, because you cannot say that something has more or something has less.
इट इज वेरी, डिफरेंस इज वेरी लेस। और वैसे भी तुम मास वगैरह देखोगे तो -27 ऐसी आ रहा ना, सो वो डिफर करता है, फिर तो हमको वापस कैलकुलेशन चेक करना है, बट ये हम जनरलाइज करके बता रहे हैं। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस वन। 3 charges, 2 coulomb, 2 microcoulomb, 3 microcoulomb, and 4 microcoulomb are placed at the points A, B, and C respectively. Determine the force on A due to other charges. Can you tell me? अब ये थोड़ा सोच के करना है हमें। ओके, सो देखते हैं कि इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए। तो एक डायग्राम दिया था उन्होंने ऐसा एक डायग्राम दिया था कि 3 चार्जेस हैं और ये ऐसे रखे हुए हैं। तो ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है और सी पॉइंट यहाँ है, और ये ऐसा है। नाउ दिस एंगल ओवर हियर इज थीटा। नाउ दिस इज 4 माइक्रोकूलम, this is 3 microcoulomb, and this is 2 microcoulomb. Now AB, okay, ये दिया गया है, whatever is the distance. So AB का जो distance है, A और B के बीच का distance is around 4 centimeters. ये 4 centimeters. और BC का distance around 3 centimeters. तो क्या आप AC ढूंढ सकते हैं? अगर ए बी ऐसा है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? सो देयर आर 3 चार्जेस व्हिच आर केप्ट एट द 3 पार्ट्स। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? क्योंकि एक ट्रायंगल अरेंजमेंट है, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस से यहाँ 5 सेंटीमीटर है, राइट? सो ए सी इज नथिंग बट पाइथागोरस अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो हमें यहाँ आ गया 5 सेंटीमीटर। आई होप यू गेट दिस। अब हमें ढूंढना है कि कितना फोर्स, what is the question? It says determine the force of A due to other charges. मतलब B A पे कितना लगा रहा है, C A पे कितना लगा रहा है। तो पहले देखते हैं कि B A पे कितना लगा रहा है। तो इट्स वेरी सिंपल, FAB निकालेंगे। the force applied of B on A, B कितना A पे लगा रहा है? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्जेस कितने हैं? 2 into 10 to the power minus 6 into 3 into 10 to the power minus 6 upon 4 into 10 to the power minus 2 the whole square. So this is 9 into 10 to the power 9 into 6 into 10 to the power minus 12 upon 16 into 10 to the power minus 4. So ये क्या होगा? 9 into 6 upon 16 into 10 to the power, ये कितना होगा? -3 बचेगा ऊपर, -12 + 9, और ये 4 ऊपर चला जाएगा। 27/8 आ रहा है, इंटू 10 to the power 1 आ रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। या सो अराउंड 33 पॉइंट कितना आ रहा है? 33.7 न्यूटन आ रहा है। आई होप यहां तक समझा आपको। ये क्या हमने देखा कि बी ए पे कितना लगा रहा है, ये प्लीज लिख के रखे, बिकॉज अभी आपको देखना है कि सी ए पे कितना लगा रहा है। कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं
सी ए पे कितना लगाएगा, सिर्फ चार्ज की थोड़ी सी डिफरेंस हो जाएगी, 3 × 10⁻⁻⁶ के बदले लिखना है 4 × 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस होगा 5 × 10⁻² द होल स्क्वायर। अपलोड मैं लेट ही करूंगी, आपको मेरे साथ करना ही पड़ेगा। अपलोड आई विल नॉट डू इमीडिएटली, because you have to attend the lecture, you have to sit in one place, you have to write the book, ये मेरे लिए कंपलसरी है। हम कब से लेक्चर ले रहे हैं, अगर अभी भी आपको नेटवर्क इश्यू है, then I personally feel that you are kidding. You understand, there are so many ways of getting a network at cheap rates, और अभी तो market has introduced so many schemes. So don't talk about network right now. You have to do it. We don't have a choice. और अगर प्री रिकॉर्डेड है तो इनफैक्ट आपका ज्यादा डेटा जाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको लग रहा है, बट एक्चुअली जब आप यूट्यूब या ये चला रहे हैं तो आपका डेटा ज्यादा जाता है, बिकॉज देन इट इज कन्वर्टेड इनटू MP4। तो वहां पर आपका ज्यादा डेटा जाता है कंपेयर टू एन ऑनलाइन लेक्चर। मुझे लगता है कि ऑनलाइन में इतना नहीं जाता है। तो हमको मत बताओ यार, हम भी इंजीनियर हैं, हमको पता है कि क्या चलता है। तुम घुमाओ मत मेरे को। या टेक्नोलॉजी के नाम पे ना हमको घुमाने बैठे, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल ओनली। So you don't tell me unless and until I find a logic behind it, I'll not agree. So we have a force AB, which is you're getting as 33.7 Newton. Have you finished this? Have you finished this? Yes, unless and until your network completely shuts down. I mean, that is a very big probability. I'm not saying that anyone is incorrect. I'm just saying that, unless and until जैसे हमारे यहाँ काम चालू हो जाता है या स्विच बोर्ड खराब हो जाता है, कुछ वायर किसी ने काट दिया होता है, ऐसे भी भयानक चीजें हो रही है आजकल। इज इट? तो अगर नेटवर्क कुछ डाउन होता है, दैट मीन्स वो उनका सर्वर के वहां से प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज इट शुड बी जस्ट फाइन। 3.37 इंटू 10⁻1 भी है ना राजेश? 10⁻1 तो भूल गया शायद, 27/8 तो है ही, इंटू 10⁻1 है, इसलिए वो 33.7 हो रहा है। वो 10 है ना बाजू में, दिख रहा है राजेश? 27/8 है ही, बट बाजू में है, यस। तो अभी हमें क्या करना है कि हम ए का असर देख रहे हैं, लाइक हाउ इट इज डायरेक्टेड। अच्छा, इनका डायरेक्शन कैसे, रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन होगा, कैसे चार्जेस ए और बी के बीच जो होगा वो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दोनों चार्जेस कैसे हैं राज? नेगेटिव है कुछ। 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, 3 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है। अगर माइनस होता तो मैं खुद बताती कि -2 है। सो दे आर एक्सपीरियंसिंग रिपल्शन, बराबर है? दे एक्सपीरियंसिंग रिपल्शन विथ ईच अदर। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट, जहां दूसरा भी है, राइट? सो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन ए एंड सी? सो फोर्स AC लगा है 1/4πε0, 2 × 10⁻⁻6 into 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 5 × 10⁻⁻2 द होल स्क्वायर। चलो ये मैं नहीं बता रही हूँ, आप मुझे फाइनल आंसर बताएं। आप खुद ही इसको सॉल्व करें एंड गेट मी द आंसर। पहले वाला मैंने सॉल्व किया, अभी आप सॉल्व करें। आप प्लीज सॉल्व करें, सॉल्व इट। नहीं, फाइनल आंसर वो नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है वो
वो सिर्फ एक का है कि सी ने ए पे कितना किया, बी ने ए पे कितना किया, फाइनल वो नहीं है। फाइनल क्या है कि डिटरमाइन द फोर्स ऑफ ए ड्यू टू अदर चार्जेस, मतलब दोनों का असर देखना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस हो जाता है इसकी वजह से, बिकॉज ये तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाता है, अभी रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। यस, एफ ए सी बराबर है, एफ ए सी अराउंड 28.8 न्यूटन आना चाहिए। सो एफ ए सी जो है आपको 28.8 न्यूटन आना चाहिए, 28.8 न्यूटन आपको आना चाहिए, राइट? आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब हमें क्या करना है कि ये जो है इट इज लाइक सेइंग देयर आर टू वेक्टर्स, यू नो देयर आर दो टू वेक्टर्स है, एक एफ ए बी है और दूसरा एफ ए सी है। तो इट्स एज गुड एज सेइंग कि दोनों का असर ए पे हो रहा है, राइट? सो कैन आई से द रिजल्टेंट फोर्स is going to be nothing but under root हो जाता है। Are you getting what I'm saying? Basically F bar is going to be FAB bar plus FAC bar, इसलिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टीडियस होता है। सो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस होता है, एंड यू नो व्हाट इज मैग्नीट्यूड, अगर दो फोर्सेस है तो आपने किया ही रहेगा, इट विल बी F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 and cos theta. सो ये कैलकुलेशन काफी टीडियस है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू बिकॉज इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं, बट इट इज दिस फॉर्मूला, मतलब यहाँ पर आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो यू कैन सिट एंड सॉल्व, बिकॉज F1 का वैल्यू हमारे पास है, F2 का है हमारे पास, प्लस 2 टाइम्स ऑफ दैट इंटू कॉस ऑफ 36.87 लेना पड़ेगा। तो वो कैसे लेते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन टैन का एंगल, यू नो टैन ऑफ आपको आपको पता रहेगा, यू मस्ट हैव डन टैन का फॉर्मूला, सो द एंगल ओवर हियर कम्स टू 36.87। सो आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू कंप्लीट दिस, जस्ट लीव इट ओवर हियर ओनली बिकॉज इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाला है, ठीक है? तो सिर्फ इसको यहाँ छोड़ दे आप। सो द डिटर्मिनेशन ऑफ द फोर्स ऑफ ए, इट इज एफ ए बी बार प्लस एफ ए सी बार। इसको करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो बहुत टीडियस हो जाएगा आपके लिए। ओके, अंडर रूट पे छोड़ दे आप। हाँ, स्क्वायर रूट है ना फॉर्मूला बेटा, स्केलर्स वेक्टर्स आपने पढ़ा रहेगा। ये tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स ही करना है, इसलिए मैंने कहा कि आपको tan इनवर्स से एंगल मिल जाएगा, ठीक है? बट इतना टीडियस एग्जाम में पूछेंगे नहीं, तो एक ही प्रॉब्लम पूछेंगे क्या, मतलब इस पे ही बैठे जाएंगे फिर। तो इसका मेथड आपको आना चाहिए कि भाई मेथड क्या है, कैसे करना है, वो उतना तो एक्सपेक्टेड। ओके, अच्छा फिर कुछ क्वेश्चंस थे मेरे को आपके, बिफोर आई गो टू दीज आई वांटेड यू टू आंसर सम क्वेश्चंस। ओके, कैन यू आंसर 1, 2 and 3? Not difficult at all. Okay. The law governing the force between electric charges, तो सबको सही आना चाहिए कि वो ऑप्शन डी है, that is Coulomb's law. Very good. तो फर्स्ट वाला सबने सही आंसर किया, अभी सेकंड वाले की तरफ जाओ। When the distance between the charge particle half हो जाएगा तो फोर्स उसमें क्या हो जाएगा? फोर्स कितना हो जाएगा? गेस नहीं करना है, देखो फोर्स और डिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो सेकंड वाला जो है इसका क्या है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट?
So अगर F inversely proportional है, then F2 upon F1, can I say it is R1 upon R2 the whole square? And that means it is R1 upon, what is R2? R1 upon 2 the whole square. So R1 gets cancelled. So can I say F2 has become 4 times F1? So it is 4 times. सो उसको सॉल्व करना आना चाहिए कि R1 अपॉन R2, फिर बोला गया है कि R2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो उसको कर देंगे तो फिर आपको मिलेगा. यस, यू कैन से क्वाड्रुपल्ड आल्सो. 4 times, so F2 is 4 times that of F1. ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर आर टू चार्जेस, 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10 to the power -6 आपको पता है, एंड 5 माइक्रो कूलम. ओके, दो चार्जेस. The ratio of the force acting on them will be. आपको क्या लगता है कैसा काइंड ऑफ फोर्स होगा अगर दो फोर्सेस हैं, +1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम. वेरी गुड. फोर्स हमेशा क्या रहता है? व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन देम? तो अगर आप F1 by F2, 5 1 पे लगाएगा, 1 5 पे लगाएगा ना बच्चा, आप सोच नहीं रहे, अकेले किसी पे नहीं लगाया जाता. दो दो अगर चार्जेस रहेंगे तो ही तो फोर्स आएगा, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूला में क्या चाहिए आपको? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो अगर मैं 1 5 पे लगा रहा है बोलूं तो 1 into 5 होगा न्यूमरेटर में. अगर मैं बोलूं कि 5 1 पे लगा रहा है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1 into 5 ही होगा. अभी आप बताओ क्या आएगा रेशियो ऑफ फोर्सेस? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आप में से कुछ लोग मुझे 5:1 बता रहे हैं, 1:25 बता रहे हैं. हाउ इज इट पॉसिबल यार? द फोर्स एक्टिंग 1 और 5 के बीच विल बी 1/4πε0 1 into 5 अपॉन डिस्टेंस जो भी रहेगा आर स्क्वायर. ठीक है, फिर अगर मैंने कहा कि 5 और 1 भी फोर्स लगा रहा है तो 1/4πε0 1 into 5 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको कैसे 25 5:1 सब आएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, आई डोंट नो व्हाट लॉजिक आप लगा रहे हो, क्योंकि 1 और 5 दोनों रहेगा तो ही आप फोर्स निकाल सकते हैं. फोर्स की मिनिमम कंडीशन क्या होती है? दो चार्जेस होने चाहिए. अगर दो चार्ज नहीं है तो आप फोर्स कैसे लगाएंगे? तो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कि अगर दो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगाते हैं? इक्वली लगाते हैं, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है. चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, डायरेक्शन विल ऑलवेज बी ऑपोजिट, राइट? डायरेक्शन ऑपोजिट ही रहेगा. अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बात कर रहे हैं तो ये यहाँ से आ रहा है, ये कैसे, बट ये तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है. अगर हम फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात कर रहे हैं तो ऐसा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है. तो चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाएंगे. ये क्लियर हो रहा है क्या? आई यू अंडरस्टैंडिंग? वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाएंगे, बट उनका जो यस मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा. क्लियर एवरीबॉडी? ओके, व्हाट अबाउट दिस? The ratio of the forces between two small spheres with constant charge in air and in a medium of dielectric constant K. आपको याद है K कहाँ आता है? तो समझो एयर पकड़ा पहले, तो 1/4πε0 K है वहां पे, वो 1 हो जाता है. Let's say it is Q1 Q2 upon R square for A. जैसे मीडियम डाला, सम मीडियम आया, क्या टेफ्लॉन प्लास्टिक कुछ तो डाला, लेट्स कॉल इट K डाइलेक्ट्रिक. सो ये आएगा 1/4π K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. हम क्या पूछ रहे हैं आपको?
हम पूछ रहे हैं एयर अपॉन मीडियम कितना होता है, एयर अपॉन मीडियम कितना होता है? या K is always hidden. So which option looks correct? Yes. So it is K is to 1. Okay. एक सोप बबल है, अगर आपको याद है मैंने एक वीडियो दिखाया था, उस वीडियो में वो सोप बबल को दे ट्राइंग टू सो सोप बबल को अगर हमने नेगेटिव चार्ज दिया, सोप बबल का कैसा होता है, whenever you imagine a soap bubble, it is the charge is negatively charged and it is distributed everywhere around the soap bubble. So a soap bubble is now given a negative charge. अगर नेगेटिव चार्ज इसको वापस दिया तो क्या होगा, क्या होगा? पहले ये सोचो रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो इसकी साइज को क्या होगा? रिपल्शन होगा तो इसकी साइज को क्या होगा? साइज को क्या होगा? आप सोच ही नहीं रहे हैं, आप सोच ही नहीं रहे हैं, सोचने की कोशिश तो करें। नेगेटिव और नेगेटिव जब सामने आएगा, कोई चीज फैलती है, इट विल अप्लाई द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर मैंने यहां नेगेटिव लाया तो ये दोनों क्या होंगे? रिपेल होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं एक और नेगेटिव चार्ज इसको दे दूं, बाहर से उसको नेगेटिव चार्ज दे दूं, तो ये और फैलेगा, क्योंकि इसकी जो साइज होगी वो और क्या हो जाएगी? नेगेटिव होते जाएगी। और ये सोप बबल की जो साइज है, इट विल कीप ऑन, द रेडियस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक सोप बबल को नेगेटिव चार्ज देते हैं, तो ये काफी आप देखोगे एग्जामिनेशंस में भी आया है कि सोप बबल को जब हम नेगेटिव चार्ज देते हैं तो इट्स रेडियस विल इंक्रीज। दैट वुड बी द राइट आंसर। उसकी सिमेट्रिसिटी में फर्क पड़ता है। हाँ, अभी किसी ने मेरे को चैट बॉक्स में पूछा कि क्या होगा कि अगर सोप बबल को पॉजिटिव दिया। ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, बिकॉज द आंसर टू दैट ऑल्सो इज इंक्रीज। मैं सोप बबल को पॉजिटिव भी दूं तो भी आंसर इंक्रीज है। तो ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेस्ड ऑन व्हाट आई थॉट यू about it. So this is very, very interesting as the game goes. Yeah. So now let's see how many of you दिमाग लगाएंगे. You got the answer. Very good. Okay. ये तो अगर आपको याद है, when a body is given negatively charge, तो उसमें क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, उसके अंदर क्या होता है? Yes, a body can be negatively charged by giving excess of electrons to it. So I don't think you have any problem with that. Next. There are two metallic spheres of same radius, but one is solid and the other is hollow. एक solid sphere है और एक hollow sphere है. Okay, अभी ध्यान से सोच के बताना. Then solid sphere can be given more charge, hollow sphere can be given more charge, or they can be charged equally, or none of the above. Acha, I'm listening to all your answers. I hope you read the question very carefully.
अच्छा, इससे जाने से पहले क्या आप मुझे बताएंगे कि चार्जेस कोई भी मेटल में कहाँ बनते हैं, कहाँ रिसाइड होते हैं, कहाँ होते हैं? नहीं नहीं, आफ्टर चार्जिंग हो रहा है ना, आपको इतना लेक्चर में, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बताया गया। यस तेजस, करेक्ट। आदित्य, करेक्ट। कहाँ रिसाइड होते हैं, कहाँ होते हैं चार्जेस, किधर होते हैं? चार्जेस आर ऑलवेज ऑन द वर्ड इज सरफेस, are always on the surface, not on the center, not on the this thing. You have to say always surface पे होते हैं। अभी आप वापस पढ़ो। There are two metallic spheres of same radii, but one is solid and the other is hollow. Then what is your answer? देखो, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सरफेस की बात कर रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सॉलिड है, ये हॉलो है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज दोनों का सरफेस एरिया तो सेम ही है, क्योंकि ये दोनों सेम रेडियस बोला उसने। तो वन इज सॉलिड एंड द अदर इज हॉलो, बट दे आर ऑफ द सेम रेडियस। अगर दोनों सेम रेडियस के हैं, इसका मतलब है दोनों का सरफेसेस का डायमेंशन सेम ही होगा। इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस, वेरी गुड। दे कैन बी चार्ज्ड इक्वली इज द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने डाल रही हूँ, ताकि कुछ चीजें जो है, कंसेप्ट्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। You know, though you feel that you've understood, then you come to an MCQ, you will get stuck and you'll wonder, why am I not doing it? Because everything has a very deep meaning to it. So I hope this is clear to you. Okay, I think this is very simple. आपने अपने लाइफ में काफी बार इसकी वैल्यू देखी है, so I don't think it is something that you don't know. वैल्यू तो मैंने आपको बताया भी था कि इसकी वैल्यू कितनी है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फर्स्ट लेक्चर में हमारी डिस्कशन हुई थी, तो आपको इसका वैल्यू तो पता रहना चाहिए। What is the value of electric permittivity? It is 8.854, बराबर है, बट यूनिट क्या है इसका? कुछ लोग वैल्यू पे चढ़ रहे हैं। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 उसका वैल्यू जरूर है, बट what about its yes, it is कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन बोला है वो गलत है। इट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो हम इसका सो आंसर इज सी। ओके, 31 मैं आपके लिए बाद में सॉल्व करूंगी। अच्छा, 33 अभी आपको बताना चाहिए क्योंकि मैंने इसके बारे में आपसे बात की है। सो 33 क्या होगा? हमने आपको समझाया था। यस, सो 33 सबको पता रहना चाहिए। एक कूलम ऑफ चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 रहते हैं, तो इट इज बी। वेरी गुड। अब 34 देख लेते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले कुछ सिमिलर किया है। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम, हमने ये सॉल्व भी किया। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बढ़ता है कि कम हो रहा है? एफ और के का रिलेशन क्या है? इनवर्स है कि डायरेक्ट है? वहां से आंसर मिल जाएगा। एफ और के, एफ किधर है, के किधर है? इनवर्स है कि डायरेक्ट है? अच्छा, इनवर्स है, एग्रीड। के की वैल्यू एयर के लिए सबसे कम होती है, बराबर है। तो के का वैल्यू अगर एयर को रिप्लेस करके डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, मतलब समझ जाने का, एयर से के बढ़ गया। तो अगर के बढ़ रहा है तो फोर्स को क्या होना चाहिए?
कम होना चाहिए. वेरी गुड. दैट्स व्हाई द ऑप्शन विल बी डिक्रीजेस k टाइम्स. आई होप दैट इज क्लियर. क्लियर है बच्चास? Okay. Now look at the last question, because I don't want to confuse you. I think a glass rod is rubbed on a silk cloth and it is used to charge a gold leaf electroscope. And the leaves are observed to diverge. मतलब उनमें repulsion हुआ because charge on glass rod is positive. So charge on gold leaves भी positive होगा. हमने क्या किया, ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, मतलब उसको चार्ज किया, उसको पॉजिटिव किया, और हमने देखा कि ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वहां पर ये गोल्ड लीव्स भी पॉजिटिव हो रहे हैं. द इलेक्ट्रोस्कोप्स थस चार्ज इज एक्सपोज टू एक्सरेज. अब ड्यू टू एक्सरेज क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दीज लीव्स जो हम बोल रहे हैं विल बी एमिटेड. एक्सरेज से ये जो लीव्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है दे मोर विल बी एमिटेड. एंड सो जितना ये लीव से इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा वो लीफ और पॉजिटिव हो जाएगा. एंड देन व्हाट यू थिंक विल हैपन? Then what you think will happen? Will the divergence of the leaves will not be affected? The leaves will diverge further, the leaves will collapse, or the leaves will melt. तो हमने क्या किया, ग्लास रॉड पॉजिटिव है, उसको एक गोल्ड लीफ से अटैच कर दिया तो गोल्ड लीफ पॉजिटिव हो गया. उसी गोल्ड लीफ पर हमने एक्सरे डाली. एक्सरे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है. और अगर एक्सरे बाहर निकालता है तो वो लीफ और क्या होती गई, पॉजिटिव. और अगर ऐसा होगा तो उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ए बी सी और डी? यस, द लीव्स विल डाइवर्ज फर्दर, क्योंकि उसमें और पॉजिटिव हो जाएगा तो वहां पर जो है रिपल्शन इफेक्ट जो है ज्यादा होता जाएगा. अच्छा, 36 आप करके आज, देन 37 38 वी कैन डू लेटर. 36 आप बता सकते हैं? One metallic sphere A is given positive charge, whereas another metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge. Then what happens? Then what happens? Then what happens? One metallic sphere A is given positive charge, whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass as that of A is given equal amount of negative charge. Then what happens? नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? मैंने ये बताया था, मैंने आपको एनर्जी मास रिलेशन बताया था. वेरी गुड तेजस. यस, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों बोल रहे हैं. नेगेटिव के पास चार्जेस ज्यादा होता है कि पॉजिटिव के पास ज्यादा चार्जेस होता है? आप लोग सोच ही नहीं रहे हैं. ए पॉजिटिव चार्ज है वेरएस बी नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव मतलब क्या होता है, व्हाट इज नेगेटिव? कितनी बार मैंने समझाया था सेकंड लेक्चर में. नेगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. नेगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो आपको क्या बोलना है यहाँ पे, किसका चार्ज बढ़ेगा? वो पूछ क्या रहे हैं, मास के बारे में पूछ रहे हैं. वो बोल रहे हैं इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, बट वो पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इट लॉस्ट इलेक्ट्रॉन. और बी का क्या है, वो नेगेटिव है, तो दैट मींस इट गेन्ड इलेक्ट्रॉन. सो विच आंसर इज करेक्ट? अभी भी कुछ लोग बी बोल रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सेइंग बी. हाउ इट विल बी बी? देवेंद्र यादव, हाउ कैन इट बी बी? मतलब मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा है. इतना क्लियर कट क्वेश्चन है.
Satyaveer, why you are saying like that? Mass of A and B still remain equal. तो आपने फिर सेकेंड लेक्चर सुना ही नहीं बराबर से. सेकेंड लेक्चर में बहुत क्लियरली आपने तो बोला था, फिर पूरे चैट बॉक्स में हाँ 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 हाँ. अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है कहीं पर, और वैसे भी पॉजिटिव और नेगेटिव में हमको पता है कि जो नेगेटिव वाला होता है उसकी मास हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट? I believe, please revise, then only we'll be able to strike these questions. I want you to listen to lecture number 1, 2 and 3 again, is what I realize. थोड़ा और रिवाइज करें, थोड़ा और प्रेशर डालें, थोड़ा वापस सुने, तो हम देखेंगे. Okay? So that's it from me today. Please, the answer is option D for 36. I will continue with this and then go to the theories that I need to add. So I believe that lecture number 1, 2 and 3 along with 4, please revise it because it's very, very important. Thank you very much for joining me today.